بہت سارے بچوں کو ابھی بھی ماں باپ بتا ہی نہیں پاتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس نہیں ہیں زندہ. ایک کمیونٹی یہاں پر کشمیر میں ہندو، مسلم، سکھ، پنڈت سب لوگ بالکل ایک اتنے یونائٹی میں رہتے تھے. پاکستان کو ڈائجیشن نہیں ہوا، پاکستان کی گورنمنٹ انہوں نے وہاں سے دہشت گرد کو بھیجنا شروع کر دیا، تو تبھی ٹیررزم پھیلا یہاں پر. یہاں جو سیپریٹسٹ لیڈرز تھے پاکستان کے ایجنٹ تھے. ٹیرر وکٹموں کو ایک ڈگنیٹی کی ضرورت ہے، کیونکہ جبکہ ان کو ہر ایک کہتا ہے آپ لوگ مخبر ہو. مخبر وہ اس لیے ان کو کہتے تھے کیونکہ وہ وطن کے وفادار تھے. جتنوں نے شہادت پائی ہے انہوں نے اپنے وطن کی مٹی کے لیے شہادت پائی ہے. یہاں کی ڈیولپمنٹ یہاں ہے اور پی او جے کی کو ابھی 100 سال لگیں گے اس ڈیولپمنٹ کو پہنچنے میں. 100 سال لگیں گے. یہ جو بڑے بڑے ٹھیکیدار بیٹھے ہیں سیپریٹسٹس، لنڈن کو پکڑ کر، یو کے کو پکڑ کر، امریکہ کو پکڑ کر، تاکہ وہاں سے ڈکٹیٹرشپ چلائیں گے ان پہ، کشمیریوں پہ. ایسا نہیں ہوتا. کشمیری سمجھ چکا اب اچھے سے، اب یہ ریڈیکلائز نہیں ہو جائیں گے. Assalamu alaikum and welcome back to our podcast Kashmir Unfiltered, and this is your host Malik Fiza. Today I have with me Miss Taslima Akhtar, who is a human rights activist and also the chairperson of ATVK. She has also represented Jammu Kashmir at the United Nations. Thank you so much ma'am for joining us today. آپ کے نام کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، بٹ آپ کے کام کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتا دیجیے. بیسیکلی آئی ایم ہیومن رائٹس ڈیفینڈر اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہوں. ایز اے چیئر پرسن ایسوسیشن آف ٹیرر وکٹمز ان کشمیر بھی کام کر رہی ہوں. جے اینڈ کے میں جتنے بھی یہاں پر ٹارگن کلنگس ہوئی ہے بائی پاکستان سپانسرڈ ٹیررزم آرگنائزیشنز، تو انہی کی ریہیبلیٹیشن کے لیے میں کام کر رہی ہوں، انہی کی پیس اور جسٹس کے لیے میں کام کر رہی ہوں. ہیومن رائٹس تو ہم سب کے پاس ہے، بینگ ہیومنز، بٹ پھر ہمیں یہ ایکٹیوسٹس کی ضرورت کیوں پڑ جاتی ہے؟ دیکھیے ایک ایکٹیوسٹ کی وائس ایسی ہوتی ہے جو ایک نان پولیٹیکلی، جس کو کوئی دبا نہیں سکتا ہے. یہ کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی آواز دے سکتا ہے. یہ ہر ہیومن بینگ کی اس کی رائٹس، ڈگنیٹی، پیس، جسٹس کے لیے ڈیمانڈ کر سکتا ہے. ہیومن رائٹس کی وائس فریڈم ہوتی ہے کہ وہ کہیں پر بند نہیں ہوتا ہے. جیسے پولیٹیکلی گین کرنے کی وجہ سے ہم یہاں پر سچائی بولے نہ بولے ہے نا، کہ ان کو ووٹ بینک کا وہ رہتا ہے. بٹ ہیومن رائٹس کا یہ رول رہتا ہے کہ ان کی آواز کو کوئی دبا نہیں سکتا ہے، اور وہ وائس ہوتی ہے ورلڈ وائڈ، وہ گلوبل وائس ہوتی ہے. تو اس لیے ہیومن رائٹس والے کسی بھی چیز کے اوپر کام کر سکتے ہیں. تو کیوں آپ کو یہ کرنے کی ضرورت پڑی؟ مطلب آپ نے کیا دیکھا کہ کیا لوگوں کو ان کے رائٹس مل نہیں رہے ہیں؟ بیسیکلی جب میں پڑھتی تھی آئی تھنک 6th-7th کلاس سے بچے کو زیادہ تر وہ یاد رہتا ہے. میرے کچھ کلاس میٹ تھے، لڑکے لڑکیاں، تب ہم مڈل اسکول میں پڑھتے تھے. تو ان کی پیرنٹس کو کل کیا گیا ہے بائی پاکستان سپانسرڈ ٹیررسٹوں نے، اور کسی کی فادر کو مارا گیا، کسی کے بردر کو، تو میکزیمم فادرس کل کیے گئے ان کی، کسی کے بردر، کسی کی سسٹر. تو اس ٹائم میں کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی ان کے لیے. مطلب غصہ آ رہا تھا، وہ جذبہ تھا کہ کیسے میں ان کو کیا کر سکتی ہوں میں ان کے لیے. بٹ چھوٹی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس صرف ان کے ساتھ ساتھ رو سکتی تھی. بالکل. تو جب میں پڑھتی تھی 5th کلاس میں، میرے ڈیڈی اور بردر کو بھی کڈنیپ کیا گیا تھا ادر ڈسٹرکٹ میں، ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ ملنگام میں. تو وہ دن بھی میں نہیں بھول سکتی ہوں. تو پھر میں نے دھیرے دھیرے جب میں بڑی ہو گئی تو میں نے سوچا کہ اگر ان کی، میں نے دیکھا یہاں ہماری جموں اینڈ کشمیر میں سب لوگ NGOs ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس ہر چیز پہ کام کر رہے، روڈ، واٹر، باقی چیز ڈیمانڈ رکھ رہے. بٹ میں نے دیکھا ٹیرر وکٹموں کو ایک ڈگنیٹی کی ضرورت ہے، کیونکہ جبکہ ان کو ہر ایک کہتا ہے آپ لوگ مخبر ہو. مخبر وہ اس لیے ان کو کہتے تھے کیونکہ وہ وطن کے وفادار تھے. جتنوں نے شہادت پائی ہے انہوں نے اپنے وطن کی مٹی کے لیے شہادت پائی ہے. تو ان کو سمجھا جاتا تھا وہ لوگ غدار ہے، وہ مخبر ہے. ان کی فیملیز چل نہیں پاتی تھی. تو پھر جب میں ہیومن رائٹس میں آئی تو میں نے ان کی ڈاکومنٹری بنانا شروع کر دیا.
हाँ, पिछले 5-6 साल से। तो उन पे वर्क करने के बाद मुझे एक मौका मिला है यूनाइटेड नेशन जाने का, इनकी आवाज़ वहाँ उनकी पीस, जस्टिस, रिहेबिलिटेशन की डिमांड करने का। क्योंकि मेरी नज़र में हमेशा मेरी क्लासमेट लड़के लड़कियां जो पढ़ते थे उनकी वो आंसू आ रहे थे। तो मैंने सोचा किसी न किसी को इस फील्ड में आना होगा आगे। फिर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है ATV, एसोसिएशन ऑफ टेरर विक्टिम्स इन कश्मीर, जो इन टेरर विक्टिमों के बिहाफ पर यहाँ पर उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए काम कर रहा है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। तो साल में 2 बार हम यूनाइटेड नेशन जाते हैं। उनकी जितना भी यहाँ पर 90 से लेके अभी तक उनके साथ जितना पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म ने जुल्म किया है, तो वो लेके, और साथ साथ जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्चिस्तान में हमारे अपने लोग हैं कश्मीरी, उनकी भी हम बात रखते हैं। उनके लिए भी हम जस्टिस की डिमांड हमेशा करते रहते हैं वहाँ पर, और उनकी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट और उनको डिग्निटी मिलनी चाहिए, और उनको बेसिक राइट्स में फंडामेंटल राइट्स उनको मिलने चाहिए, जो उनको रोज़मर्रा ज़िंदगी में चाहिए वो उनको मिलना चाहिए। तो आपने कहा कि आप लाइक जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर उनके वहाँ के जो लोग हैं उनके हुकूक के लिए भी बात करती है, तो वहाँ की आवाम के बारे में क्या राय है आपकी? देखो, बेसिकली है तो हमारा अपना ही कश्मीरी कौम वो वहाँ पर। इससे पहले आप देखो कि 30 सालों से 35 सालों से तशद्दुद वहाँ पर होके आया है। जब भी हम देख रहे हैं कोई भी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं तो उनको वहाँ से गोलियाँ मिलती हैं, उनको वहाँ से डंडे बरसाते। वो वहाँ पर नहीं देखते हैं कैसे वो बलूचिस्तान में कैसे किलिंग्स करते, औरतों को घसीटते बहुत बुरी तरीके से। कि उनको एहसास ही नहीं रहता कि हम भी माँ वाले हैं, हम भी बहन वाले हैं, कि कैसे हम किसी लड़की को, औरत को घसीट के ले जाए और उनके बदन से कपड़े तक उतारते हैं। वहाँ आर्मी का राज इतना है, जबकि आर्मी प्रोटेक्शन बॉर्डर्स के लिए होती है, बट वो वहाँ पे सेंटर में लोगों के साथ लड़ रहे हैं। वो सेंटर में लोगों को, बेगुनाह लोगों को कत्ले आम करते हैं। मतलब ऐसा कि उनको जैसे कोई बोलने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, और ढंढूरा पीटते हैं वर्ल्ड वाइड कि हम जी पीसफुल कंट्री है, हम पीस चाहते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जिन कश्मीरी के लोगों के लिए इतना ग्लोबल इशू बना, एक इतनी इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंडस्ट्री बना दिया गया हमारी कश्मीर के लोगों को वहाँ पर, उन्होंने, पाकिस्तान ने, उन्हीं के नाम पे फंडिंग जमा करना, हर कंट्री से बारूद खरीदना, सामान खरीदना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसको करना, फिर अपनी कंट्री में टेरर ऑर्गेनाइजेशंस बनाना, फिर ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू आम इनोसेंट लोगों की, सिविलियन लोगों की कत्ल गारत करवाना। मतलब ये तो शेमफुल है ना। तो यहाँ के किस टाइप के केसेस जो है वो आप रेज करती हैं यूनाइटेड नेशंस में? यहाँ पर जिन बच्चों को अर्पण किया गया है, जिन्होंने मतलब बाप का साया तक नहीं देखा। एक हो गया कि कम से कम बाप को देखा है, दूसरा हो गया कि किसी माँ के पेट में अभी बच्चा पल ही रहा था, 7 महीने का था, 6 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, फिर उसके बाद फादर का किल होना। फिर वो जब अभी बड़ा है, जब वो सुनता है, जब वो देखता है स्कूल के बच्चों को जाते हुए, फिर वो जब बाप माँ को पूछता है कि मेरा, बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे, क्योंकि मैंने हर डिस्ट्रिक्ट में काम किया है, बहुत सारे बच्चों को अभी भी माँ बाप बता ही नहीं पाते हैं कि आपके पेरेंट्स नहीं है जिंदा। कुछ मैंने फैमिलीज ऐसे देखे, मैंने बोला आप उनको झूठ क्यों बोलते हो कि आपके पापा हज पे गए हैं, वो जॉब कर रहे हैं बाहर, तो इनको एक न एक दिन पता चलेगा। अभी वो छोटे जो ना यही मतलब पढ़ते हैं 4th 5th में, बोला इन पर ना बहुत असर पड़ेगा वो ना, कि कोई किसी को बोलता मामू आपका पापा है, चाचा आपका पापा, वो उसी को पापा पापा कहकर पुकारता रहता है। मतलब जब वो मैच्योर हो, जब उसको समझ आता कि नहीं ये मेरा बाप नहीं है, मेरा असली बाप, वो ढूंढेगा मेरा असली बाप कहाँ है। तो फिर जब मैंने देखा ये चीज़ कि हर एक को मुखबिर समझना, डिग्निटी ना देना, उनसे कोई बात अच्छे तरीके से नहीं करते थे, उनके घरों नहीं जाते थे, तो मैंने सोचा नहीं तस्लीमा, आपको अपना सारा कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ की सारी कंफर्ट छोड़नी पड़ेगी, सोशल लाइफ छोड़ दो, इनके लिए आवाज़ दो, फिर आप देखो
जब मैंने 2020 से उनको शुरू किया है वहाँ यूनाइटेड नेशन में उनकी बात रखी है, उनकी पीस के लिए, जस्टिस के लिए, डिग्निटी के लिए, तो डेफिनेटली टेरर विक्टिमों को पीस भी मिला, डिग्निटी भी, रिहेबिलिटेशन भी। और अभी देखो कितनी ऑर्गेनाइजेशंस इस पे काम कर रही है टेरर विक्टिमों पे। बिल्कुल। मगर पहली आवाज़ हमने ग्लोबल लेवल पर दी इनके लिए। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी, एट फर्स्ट प्लेस ये टेररिज्म जो है हुआ क्यों? मतलब कश्मीर के इतने हालात बिगड़े, जैसे आप कह रहे कितने सारे बच्चे ऑर्फन हो गए, कितनी सारी औरतें विडोज़ बन गई। एट फर्स्ट प्लेस ये क्यों था ऐसा सिनेरियो कश्मीर में? देखो ये एक कन्फ्लिक्ट बनाया है पाकिस्तान ने। एक कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी। जब अचानक पाकिस्तान ने यहाँ पर हमला किया, एक कम्युनिटी ये यहाँ पर कश्मीर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, पंडित सब लोग बिल्कुल एक इतने यूनाइटी में रहते थे। पाकिस्तान को डाइजेशन नहीं हुआ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, वहाँ की आर्मी को ये चीज़ें। जब उन्होंने वहाँ से दहशतगर्द को भेजना शुरू कर दिया तो तभी टेररिज्म फैला यहाँ पर। जब उन्होंने वहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने बनाया, आप देखो लश्कर तैयबा, आप देखो हिजबुल मुजाहिदीन, आप देखो अल बदर, अल कायदा, आप देखो क्या कहते हैं TRF, कितने नाम आप याद रखोगे। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अच्छा काम करती है, सब उसका मतलब पाक तरीके से नाम लेते हैं। तो आप देखो उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं लोगों की कत्ल गारत करने के लिए, बेगुनाहों की, और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे ढिंढोरा पीटते हैं कि ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लोग इसलिए इस्लामिक नाम रखा ताकि लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम बुरा ना कह सकें। ओके। वो एक टेरर स्टेट है, उनको सबसे ज़्यादा कंसेप्ट है टेररिज्म पे, उसमें तो वो आगे है बहुत ज़्यादा। नंबर 1 है वर्ल्ड वाइड उसमें टेररिज्म में। वो तो पाकिस्तान की बात होगी कि आप कह रहे उनकी वजह से, बट हमारे यहाँ पे भी कुछ सेपरेटिस्ट लीडर्स थे जिनका भी यही कॉन्सेप्ट था कि हमें अलग होना है, वो ये सब। हमारा यूथ यहाँ पे इतना रेडिकलाइज हो गया था कि ऑल टुगेदर वो लोग भी कुछ और ही बोल रहे थे। तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखो एक पाकिस्तान ने एक ऐसा एजेंडा क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी हमारे इंडियन कश्मीर में कि यहाँ के यूथ को ऐसे रेडिकलाइज करना चाहा था कि आपको भी, जैसे इन कश्मीरियों को ना POJ के वालों को आज़ाद बोलते थे, आज़ाद कश्मीर, है ना। अब तो पूरी दुनिया को पता चला है कि कितने आज़ाद है वो। यहाँ को यूथ को वैसे ही रेडिकलाइज कर रहे थे। मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ जो सेपरेटिस्ट लीडर्स थे पाकिस्तान के एजेंट थे, पाकिस्तान की आर्मी के, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, सो कॉल्ड गवर्नमेंट, उनके एजेंट थे। असल में वो नहीं चाहते थे कि वहाँ वो डेवलपमेंट दे नहीं पा रहे थे उस वाले कश्मीर में, POJ के में। वो चाहते थे जब यहाँ के लड़के रेडिकलाइज हो जाएंगे ताकि वो एक दूसरे से ही निपटे। ये कश्मीरी को कश्मीरी से लड़वाना चाहते थे। मगर कश्मीर के, मैं बहुत मतलब कश्मीर के लड़कों को सल्यूट करती हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान ऐसे को, वहाँ की गवर्नमेंट, फेलियर गवर्नमेंट को आईना दिखा दिया कि हम रेडिकलाइज के सिस्टम के साथ नहीं है, हम अमन परस्त हैं। तो वो वहाँ पर जब कर नहीं पाते थे डेवलपमेंट, तो उसकी वजह से फिर वो इन्हीं सेपरेटिस्टों की वजह से, आप अगर बैक में जाएंगे 8-10 साल बैक, आप देखो कैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, हॉस्पिटलों को कैसे तोड़ फोड़ कर रहे थे। क्या चाहते थे? ताकि ये इमारत एक यहाँ पर लोगों के लिए बनी है, इसमें लोगों, आम पब्लिक का बेनिफिट है। गवर्नमेंट का क्या बेनिफिट उसमें रहता? वो हमारी फैसिलिटी के लिए बनता था। उन्हीं स्कूलों को जला देते थे ताकि यहाँ पर एजुकेशन हाई ना हो, यहाँ पर लोग एजुकेटेड ना रहे, ताकि ये इलिटरेट रहे। फिर जो हम उनको बोलेंगे वही बोली गाएंगे, है ना। आप पिछले 8-10 सालों से काम कर रहे हैं, तो जो जम्मू कश्मीर के हालात उस टाइम पे थे, जैसा सिनेरियो उस टाइम पे था और जैसा आज है, क्या डिफरेंस लगता है उसमें? देखो हर दिन मैं देखती हूँ बदलते हुए हालात है, दिन ब दिन अमन है, डेवलपमेंट है, हर चीज़ दिन ब दिन अब मॉडर्नाइज दौर है। तो हर चीज़
फैसिलिटेट इनको हो रहा है, बट अभी भी पाकिस्तान को ये चीज़ें हज़म नहीं हो रही है ना कि जो यहाँ पर आप देखो एक यहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम जो अभी है, या हेल्थ के रिलेटेड आप ले लो कि जो एम्स दिल्ली में जाना पड़ता था वो अभी जम्मू कश्मीर में भी है ना, जम्मू में दिया गया। तो कम से कम श्रीनगर में बहुत बड़े हॉस्पिटल्स है, या डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देखो हमारे बारामूला में भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो इसका सेकंड ब्रांच है सोरा का। तो मुझे लगता है कि वो कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना इस वाले कश्मीर के साथ, तो इसीलिए उनको थोड़ा जलस भी हो रही है क्योंकि उनका ज़्यादा रहता है फंडिंग को यूटिलाइज़ करना उसी पर सामान पर, जो वेपन्स पर जो लोगों की कत्ल गारत के लिए वो ख़रीदते हैं, तो इसलिए वो आगे नहीं बढ़ा पाते खुद को। तो जैसा था यहाँ पे पहले जो भी सिचुएशंस थे, जैसे कंडीशंस थे, आपको क्या लगता है कि कितना इम्पैक्ट पड़ा हमारे कश्मीर की इकोनॉमी पे, हमारे लोगों की साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ है उस पे, जैसे आप कुछ स्टोरीज भी आपने शेयर करी, क्या लगता है कि कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है उसकी वजह से? मैंने देखा कि जब यहाँ पर रिसेंटली पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने अंजाम दिया था वो मैसेकर एक पहलगाम, उसके बाद उस साल में टूरिस्टों का फ्लो कम हो गया, एक वो थोड़ा सा डर, वो दहशत, वो खौफ। मगर आज मैं जब घर से निकलती हूँ, जो मतलब 5 मिनट का रास्ता होता है जानने का, इतना जाम होता है रास्ते में ना कि वहाँ तक आधा घंटा लगता है पहुँचने में। क्यों? अदरवाइज हमारे रोड भी ब्रॉड है, बहुत अच्छे हैं, इतना टूरिस्टों का फ्लो है। ओके। तो मैं आपसे अब ये भी जानना चाहूँगी कि आपने आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए बहुत सारा काम किया है, आपने अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत सारा काम किया है, तो अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़े 2 कश्मीर को, किस तरह आप उनको डिफ्रेंशिएट करेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम उनको कंपैरिजन में लाना चाहते हैं एक साथ, तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ की डेवलपमेंट यहाँ है और POJK को अभी 100 साल लगेंगे उस डेवलपमेंट को पहुँचने में, 100 साल लगेंगे। अभी आप देखो कि वहाँ पर एक छोटी छोटी चीज़ों की मांगे पूरी नहीं होती है, तो हम कैसे उनको कंपैरिजन करें इस जम्मू कश्मीर से कि वो रिलेटेड होंगे? उनको बहुत टाइम लगा क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान चाहता नहीं है ना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं चाहती है, वो फेलियर है, डिक्टेटरशिप पे चलती है। आर्मी नहीं चाहती इन लोगों को फैसिलिटेट करें हम हर चीज़ से, वो नहीं चाहते, उनको बस लैंड चाहिए। आपने कहा कि हमारा जो जम्मू कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, बट फिर भी अगर देखा जाए, आई मीन देयर इज लॉट टू डू, राइट? तो आपके लिए अभी कुछ और ऐसा क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी और बूस्ट हो, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो और बेटर हो, ऐसा क्या हमें करना चाहिए? डेफिनेटली आप देखो कि जैसे यहाँ पर अभी आई थिंक ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर एक टूरिस्ट स्टेट है, ठीक है, उसके हवाले से हर एक डेवलपमेंट आती है। फिर लाइक एक टूरिस्ट जब यहाँ पर आता है उसको पानी भी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, उसको रहने की जगह भी चाहिए, उसको शॉपिंग भी यहाँ से चाहिए, उसको ट्रैवल भी चाहिए, है ना? तो जब वो उस डेस्टिनेशन पे पहुँचता है जहाँ पर वो सैर करने के लिए आया है, हर एक तबका चलता है इससे। फिर वो हमारा डल लेक है, वहाँ पर शुकारा राइड करता है, वो भी चलता है। वो एक टूरिज़्म जो है, टूरिज़्म हमें बहुत बड़ी इकॉनमी दे सकती है। और दूसरी बात, उससे सब चलता है, होटल्स चलता है, ट्रांसपोर्ट चलता है, और जो बाकी शॉपकीपर्स है वो चलते हैं। एक लड़का दिन का कम से कम 1000, 1500, 2000 कमाता है, है ना? तो उससे ये लड़के, इनका माइंड डाइवर्ट होता है कि नहीं, हमें आगे जाना है, हमें अपनी फैमिली के लिए कुछ कमाना, कुछ करना है, हमें अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है, हमें रेडिकलाइज नहीं होना है। ये जो बड़े बड़े ठेकेदार बैठे हैं, सेपरेटिस्ट्स, लंदन को पकड़कर, UK को पकड़कर, अमेरिका को पकड़कर, ताकि वहाँ से डिक्टेटरशिप चलाएंगे इन पे, कश्मीरियों पे, ऐसा नहीं होता। कश्मीरी समझ चुका अब अच्छे से, अब ये रेडिकलाइज नहीं हो जाएंगे क्योंकि इनको समझ आ चुका है हमें करना क्या है। Exactly. At the end, what we need is development. Definitely. तो क्योंकि जब आप पढ़ाई करोगी तभी आपको एक अच्छा मुकाम मिलेगा, तभी आप एक अच्छे मुकाम तक पहुंच पाओगे। तो अब ये समझ चुके हैं कि नहीं, हमें किस चीज़ में बेनिफिट है और किस में नुकसान है। अभी हम यूथ की ही बात करें तो अभी मैं आपसे ड्रग्स के बारे में भी पूछना चाहूँगी कि हमारा जो आज यूथ है
रेडिकलाइजेशन से तो बाहर आ गए हैं, बट अब एक नई बीमारी है ड्रग्स की, तो काफ़ी अलार्मिंग रेट पे यहाँ पे जो ड्रग्स का इनटेक है वो बढ़ रहा है. तो क्या लगता है आपको, क्यों ऐसे सडनली हो रहा है? देखो, बेसिकली पाकिस्तान नए यूथ को उस तरीके से एक नस्ल कशी को ख़त्म करना चाहते हैं. इनको पता है कि ये यूथ उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. इस यूथ ने पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को रिजेक्ट करा है. जो वहाँ की आर्मी आइडियोलॉजी थी, ऐसे की आइडियोलॉजी थी, सेपरेटिस्टों की आइडियोलॉजी थी, परपिटेटर्स की आइडियोलॉजी, उसको बिल्कुल टोटली रिजेक्ट किया है. तो अब ये चाहते हैं कि नस्ल कशी ही यहाँ पर ख़त्म हो. जब एक लड़के को ड्रग्स दिया जाता है, मैंने आमतौर पर ऐसे केसेस देखे हैं ज़्यादातर जो खुद को करते हैं. ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? ये नहीं चाहते हैं कि ये यूथ आगे बढ़े, यही यूथ यहाँ इस जम्मू कश्मीर को संभाले. ये चाहते हैं जो रेडिकलाइज वाला सिस्टम साथ था हमारे, बस वही रहे ताकि हम उनमें खुद मुख्तार रहे. और दूसरी बात, उनको अपनी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने में भी उसमें मदद मिलती है. जो वो फंडिंग वहाँ से पैसा लाते थे, उसको करेंसी को एक्सचेंज करने में अभी उनको नहीं हो पाएगी, यहाँ से करेंसी एक्सचेंज नहीं हो जाएगी. और सेकंड थिंग ये है कि उनको कितना पैसा वो वहाँ से एक टेररिस्ट साथ लाएगा, है ना. तो वो करता है काम, एक ड्रग्स पॉकेट साथ लाना, फिर उसकी यहाँ पर सेल आउट करना, फिर धीरे धीरे करके वही पैसे टेररिज्म पर इन्वेस्ट करना. तो इतना इजीली ये हो जाता है, मीन वहाँ से यहाँ तक ड्रग्स का वो ड्रोन सिस्टम है ना, ड्रोन सिस्टम है. आज टेक्नोलॉजी का दौर है. इनको अपने बहुत ऐसी बात नहीं है कि इनको बहुत अभी इस कश्मीर में भी, इंडियन कश्मीर में अभी इन्फेक्शन है रेडिकलाइज को लेके. जो उनके गिने चुने वो लोग हैं, तो वो इन चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं. ऐसी बात नहीं है, वो इंटरनली अपनी पॉलिसियों को चला रहे हैं. बट ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ क्रॉस बॉर्डर से ही आ रहा है, हमारे तो अपने भी लोग इसमें जुड़े हैं जो ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं. मैं ये कहूँगी कि ये जो हीरोइन ड्रग्स वगैरह, ये तो कश्मीर में निकलता नहीं है ना. ये यहाँ का है नहीं, निकल तो नहीं रहा है. आप डेफिनेटली देखो, जहाँ से निकल रहा है तो वहीं से आ भी रहा है ना. अभी तो वो 100 डेज कैंपेन भी चल रहा है नशा मुक्त भारत, बिल्कुल, जम्मू कश्मीर एक्चुअली. बिल्कुल. और क्या लग रहा है आपको, कितना सक्सेसफुल रह रहा है वो? देखो, सक्सेसफुल में क्या बात करूँगी, एक अवेयरनेस ज़रूर हो रही है लोगों में. जबकि उसमें एक बंदे के पास ह्यूज में पकड़ा जाता है ड्रग्स, फिर उसकी प्रॉपर्टी सीज हो जाती है, तो दूसरे को डेफिनेटली डर रहता है, मुझे इस काम को आगे नहीं जाना चाहिए, मुझे इस काम को टच नहीं करना चाहिए, है ना, कि ये मेरे लिए बहुत ख़तरनाक है. तो ये एक वो है कि लोगों को और इन लड़कों को ना ड्रग्स से बाज आने की अवेयरनेस चल रही है, ताकि यहाँ के लड़के उस चीज़ में मुलव्वस ना हो जाए. आपने देखा होगा कि हमारे कश्मीर में क्राइम नहीं होते थे. अभी इस ड्रग्स ने इतनी वबा, इतनी बीमारी फैलाई है कि एक ड्रगिस्ट को ना अपनी माँ दिखती है सामने, ना बहन दिखती है, ना भाई दिखता है. बहुत सारे लड़कों ने यहाँ पर कत्लो गारत करी है, माँ की, बाप की, किसी लड़की की, क्योंकि ड्रग्स के नशे में. तो मैं कहती हूँ कि ड्रग्स ही क्या, हर एक नशा बहुत ख़तरनाक नशा होता है, जहरीला नशा होता है. मैं चाहती हूँ हर नशे से हमें मुक्त होना है. ये जो रेडिकलाइज वाला नशा, ये क्या कम है? ये तो एक साइलेंट इंसुलिन वो रगों में भरता है पॉइजन के, है ना. सबसे बड़ा मुझे लगता है ये नशा है. और ये होना चाहे. बाकी नशे शराब के हैं, चरस के हैं, इसके क्या कहते हैं, ड्रग्स के हैं, सारे नशों को मुक्त करो. कोई भी नशे को सपोर्ट मत करो, क्योंकि नशा नशा ही है. आप ग्लोबल लेवल पे काम कर रही है, ग्लोबली मैसेज दे रही है लोगों को, तो एक लास्ट का मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए भी. लास्ट मैसेज मेरा यही रहेगा, अपने लोगों के लिए भी और इंटायर वर्ल्ड के लोगों के लिए, कि हमें ह्यूमैनिटी के साथ स्टैंड होना चाहे, और हमें ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहे, हमें पीस के लिए काम करना चाहे, हमें हमेशा अपने रीजन्स में वायलेशन को नहीं होना देना चाहे, उसके लिए हमें फ़ाइट करना चाहे. और जो लोग हैं, जो वॉइसलेस लोग हैं, उनकी जस्टिस, डिग्निटी और पीस के लिए हमें फ़ाइट करना चाहे, और उनकी वॉइस बननी चाहे. थ्रेट्स तो आते रहते हैं, डरना तो नहीं है थ्रेट से, क्योंकि ये लेके चलो कि आज नहीं तो कल मरना ही मरना है,
ٹھیک ہے، اس لیے ڈرو مت. جب اوپر والے نے لکھا ہوگا آپ کی فائنل ڈیسٹینیشن کیسے ہے، کہاں پر ہے، وہ تو اس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا، دنیا کی کوئی بھی طاقت. لیکن اس سے پہلے ہر ایک کے ساتھ بہت ہی اچھے ہمبل طریقے سے چلو. میرا یہ ماننا ہے کہ جس پروفیشن میں آپ ہو ہمیشہ بی ہمبل، بی کائنڈ رہو ہمیشہ. بس اوپر والا پھر آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو کانٹا تک چبھنے نہیں دے گا کبھی بھی. بٹ جب آپ کا وہاں کا ٹائم آئے گا اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، لیکن ڈرنا نہیں ہے. All right, thank you so much. You're watching our podcast Kashmir Unfiltered, and I hope you like our podcast. Until next time, this is your host signing off.